فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکة تسمیۃ الانثى وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاة الدنیا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ یہ سورہ نجم مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا ایک رکو ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیے تھے، اب یہ اس کا دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ اور سورہ نجم میں گزشتہ جمعرات کو ہم نے سب سے پہلا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ستارے کی قسم کھائی ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی کہ جب وہ گرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہاں پر ذکر آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کے اصلی شکل کے اندر دیکھا۔ یہ 2 واقعات، ایک تو دنیا کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر رہے تھے، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے آسمان کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر دیکھا، جہاں پر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ کے معنی بیری کے ہے، اور منتہا ہر چیز کی انتہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام جب معراج کے اندر لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد سدرہ جو ایک بیری کا درخت ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام جب معراج کے لیے لے جانے کے لیے آئے، وہ ان کی اصلی شکل میں نہیں تھے، کسی اور شکل میں تھے۔ تب تو وہاں پر جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو معراج میں چھٹے آسمان پر جبریل علیہ السلام اصلی شکل میں، جن کے 600 پر ہیں، اور 2 پر شب قدر کے اندر جبریل علیہ السلام آتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، اور وہ 2 پر اس دن کھولتے ہیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، اور 4 جو مقرب فرشتے ہیں، ان 4 مقرب یعنی کہ اللہ کے جو قریبی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ کے بندوں پہ، جو ان کے مخصوص بندے ہیں جن کو ہم انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لانے کی ذمہ داری ہے جبریل علیہ السلام کی۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کے بعد پہلا سفر، جس کو اسرا کہا گیا ہے، 15ویں پارے کے پہلے سے پر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ پہلا سفر جو تھا وہ اسرا تھا، یعنی رات کا سفر، اور یہ سفر تھا مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ، مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، جہاں پر آج غزہ ہے۔ اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ وہاں سے پھر دوسرا سفر شروع ہوتا ہے جسے معراج کہا جاتا ہے، اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے ہر آسمان سے گزارتے گزارتے چھٹا آسمان جہاں پر آیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اور ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، اور وہاں پر جو دروازہ ہے ہر آسمان میں، وہ دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا جہاں پر فرشتے مقرر ہے، اور وہ فرشتے پوچھتے کہ کون ہے ساتھ میں، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے؟ تو جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ان کو بلایا گیا۔ تو ہر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا، اور ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، پہلے آسمان حضرت آدم علیہ السلام پر، اور اسی طرح جب چھٹے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چھٹے آسمان کے اندر اس کی جڑیں ہیں سدرۃ المنتہا کی، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان تک گئی ہیں۔ تو وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی شکل کے اندر نظر آئے، اور یہ سدرہ جو ہے بیری کا درخت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کی 2 تمہاری دنیا میں جا رہی ہیں، ایک کا نام فرات ہے اور دوسرے کا نام نیل ہے۔ فرات عراق کے اندر ہے،
اس لیے قیامت کے قریب کی جو نشانیاں ہیں، فرات کا پانی سوکھ جائے گا اور وہاں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. سنے ہیں نہیں؟ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونا اگر نکل جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے تو اس کو لینے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا. اس لیے اس میں کے 99 لوگ مر جائیں گے، صرف ایک بچے گا. 100 میں کے 99 سونا حاصل کرنے کے لیے مریں گے. تو وہ سونا اگر آپ کے دور میں نکل آئے تو اس کو نہیں لینا ہے. تو دریائے فرات کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ پانی آ رہا ہے چھٹے آسمان کی جڑ سدرۃ المنتہا سے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کی 2 نہریں آپ کی دنیا میں جا رہی ہیں. ایک کا نام ہے فرات اور دوسرے کا نام ہے نیل. نیل یہ مصر کے اندر ہے، جس کو انگلش میں ایجپٹ کہتے ہیں نا، مصر، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جہاں پر قید تھے، فرعون جہاں پر ان کو ظلم کرتا تھا وہاں سے نکالنے کی، وہاں پر دریائے نیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور آیا، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا. یہ پانی آ رہا کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے. اور معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ سدرہ سے 2 نہریں زمین میں آ رہی ہیں، فرات اور نیل، اور 2 نہریں جنت میں جا رہی ہیں. ایک کا نام سیحون اور دوسرے کا نام جیحون. سیحون اور جیحون جنت میں جا رہی ہیں اور اس میں فرات اور نیل دنیا میں آ رہی. فرات کہاں پر ہے؟ عراق میں. اور نیل کہاں ہے؟ ایجپٹ، مصر کے اندر. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب خلیفہ بنے، ان کے دور کے اندر نیل کا پانی سوکھ گیا. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جب بھی اس کا پانی سوکھ جاتا تو ہم ایک لڑکی کو بند سوار کر لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کی ہم بلی دے دیتے ہیں، تو اس کا پانی شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پر جو امیر مقرر تھے انہوں نے فوراً حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین کو خط لکھا اور کہا کہ یہاں پر ایسا معاملہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واپس میں خط لکھا اور اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو کسی اور کے حکم پر چلتی ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں. تو نیل کس کے حکم سے چڑھی؟ اللہ کے حکم سے چل رہی. اور اس قاصد سے کہا کہ یہ چٹھی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو نیل کے اندر ڈال دو. جیسے ہی فرمایا کہ وہ نیل کے اندر چٹھی ڈالے تو نیل نے بہنا شروع کیا، آج تک بند نہیں ہوئی. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے اس کے اندر، جب بھی وہ پانی بند ہوتا تو کسی لڑکی کو وہاں پر لے جا کر اس کی بلی دے دیتے. تو سیحون اور جیحون جنت کے اندر جا رہی ہیں اور فرات اور نیل ہماری دنیا کے اندر آ رہی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے تو وہاں پر دیکھا کہاں سے نکل رہی ہیں 2 نہریں؟ چھٹے آسمان میں سدرۃ المنتہا کی جڑ، اس کا جو پیندا ہوتا ہے نیچے جسے مولیاں ہوتے ہیں، وہاں سے یہ 2 نہریں نکل رہی ہیں، فرات اور نیل. اور یہ ہماری دنیا کے اندر آ رہی ہیں. کیسے آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں بتایا تھا وہاں پر ہے کرسٹل، اور کرسٹل کے اندر کیا کام کرتا؟ وہ ٹیلی پورٹ کا کام. ایک چیز اگر داخل کرے دوسری چیز سے نکل جائے گی. تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے جڑوں کے اندر یاقوت اور زمرد ہے. اور ابھی کی جو تحقیقات ہے یہاں پر جو تحقیقات کی گئی کہ جہاں سے نیل اور فرات کا پانی آ رہا ہے وہاں پر بھی یاقوت اور زمرد ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیقات ہے، یہ مخلوقات ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ قدرتوں کا مالک ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سدرا کو دیکھا، یعنی بیری کا درخت. اور وہ سدرا کے تعلق سے گزشتہ جمعرات کو ہم نے پڑھے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ جبریل کو دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرا کے پاس دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، جہاں پر جنت الماوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور اس سدرا کو یعنی اس بیری کے درخت کو جس نے بھی ڈھانپا تھا بس اس نے ڈھانپا ہوا تھا. یعنی وہ جو سدرۃ المنتہا کے اوپر جو ڈھانکی ہوئی جو چیز تھی، فرمایا کہ اس کو ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. اتنے خوبصورت سونے کے پروانے اور اللہ کی تجلیات اس کے اوپر برس رہی تھی، نازل ہو رہی تھی اور اتر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس کے رنگوں کو بھی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. عجیب و غریب رنگ اور عجیب و غریب خوبصورتی. اور قرآن نے بھی فرمایا اذ یغشی السدرہ، یعنی اس سدرہ کو جس نے ڈھانپا ہوا تھا، جو کچھ اس کو ڈھانپا ہوا تھا
अल्फाज नहीं उसको बयान करने के लिए। तो वहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम असली शक्ल में नजर आए। वहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरा की जड़ में देखा 4 नहरें निकल रही हैं, फुरात और नील, और 2 सेहून और जेहून, एक दो दुनिया में आ रही है और 2 जन्नत के अंदर जा रही है। और वहां से आगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक मकाम आया जहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आकर रुक गए और फरमाया इससे आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकता, ये मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। और वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज, और मेराज के अंदर, मेराज के मायने है उरूज। उरूज किसे कहते हैं? ऊपर जाने को। इतने ऊपर गए कि अल्लाह तबारक ताला से करीब हो गए और अपनी सर की आंखों से बेदारी की हालत में अपने जिस्म के साथ, अहले सुन्नत वल जमात का हमारा अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अपने जिस्म के साथ हुई है और बेदारी के अंदर हुई है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सर के आंखों से अल्लाह ताला का वहां पर दीदार फरमाया। 2 मसले इसके अंदर। हजरत आयशा फरमाते हैं कि अल्लाह को नहीं देख सकते, रुयत बारी ताला, यानी अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने कहती है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का कहना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा है। ये एक मसला है, हजरत आयशा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु। खैर, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, और मेराज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अल्लाह ताला से वहां पर मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद बहुत सारी राज व नियाज की बातें हुई, जिसमें जन्नत और जहन्नम का सैर उनको कराई गई और बहुत सारी चीजें बताई गई। वहीं पर अल्लाह तबारक ताला ने जब वापिस हो रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हदिये के तौर पर और तोहफे के तौर पर अल्लाह ताला ने वहां पर 50 नमाजें फर्ज फरमाई। कितनी नमाजें? 50 नमाजें। जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आए छठे आसमान पर, वहां इस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ सकती, कम करा के लाओ। कम कराते कराते बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, यहां तक के फरमाए कि आखिर में पूछा अब कितनी है, तो फरमाया कि अब सिर्फ 5 रह गई है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कह रहे थे कि इसको कम करा के लाओ, मुझे मेरी उम्मत का हाल मालूम, बनी इसराइल का, आपकी उम्मत 5 नमाजें नहीं पढ़ सकी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे मेरे रब के पास जाने की शर्म आती है। तो अल्लाह तबारक ताला ने गैब से आवाज दी और फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो कहा था 50 नमाजें, तो आपकी उम्मत पर 50 नमाजें ही है, 50 ही नमाजें जो लिखी गई है, 50 नमाज। लेकिन तुम्हारी उम्मत अगर 5 नमाजें भी पढ़ेगी तो मैं 50 का सवाब दूंगा, 50 बाकी रहेंगी, लेकिन 5 भी अगर पढ़ेंगे तो, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है और कुरान पाक की आयत भी है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा हम उसको 10 देंगे। 1 के 10 का अल्लाह का वादा है। 1 नमाज पढ़ेंगे तो 10 नमाजों का सवाब, 5 नमाज पढ़ेंगे 50 नमाजों का सवाब। तो 5 नमाजें अगर ये उम्मत पढ़ेंगी तो मैं 50 नमाजों का सवाब, क्योंकि 50 लिखी जा चुकी है, तो आपकी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, मैं 50 नमाजों का उनको सवाब दे दूंगी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी में, जब मेराज से वापिस हो रहे थे, तो ये तोहफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और सहाबा किराम से फरमाए कि रात को अल्लाह ताला ने मुझे मेराज अता फरमाई। एक सफर तो मक्के से मस्जिद अक्सा फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस का हुआ, और दूसरा सफर वहां से मेराज का हुआ, और वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तोहफे के अंदर नमाज अता फरमाई। तो मक्के वालों को तो हैरत हुई और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि रातों रात बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा जाना नामुमकिन है, और वहां से 7वां आसमान पर जाना, हम इसको नहीं मानते। और जो ईमान वाले थे साहबा किराम, उन्होंने तो मान लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरमाते हैं कि जो फरिश्ता, हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब कहा गया, अबू जहल ने कहा कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि वो रातों रात आसमानों पर गए हैं, मस्जिद अक्सा फलस्तीन गए हैं, तो ये हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। तो बोले कैसे? तो बोले उनके पास जो फरिश्ता आता है ना, जिब्रील, वहीं से आता है। वो फरिश्ता जो वहां से आ सकता है, तो ये भी तो वहां जा सकते हैं, मुमकिन है। ये ईमान है हमारा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, जिसकी खबर दी गई है, वो गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सच्चे हैं और आपने सच बात फरमाई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की खबर दी, तो मक्के वालों ने, जो ईमान वाले नहीं थे, उन्होंने इसका इनकार कर दिया, ईमान वालों ने उसका इकरार कर लिया। तो इस सिदरतुल मुंतहा पर जाने के बाद उससे आगे 7वां आसमान, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर, फरिश्तों का काबा, और हर आसमान पर काबा है फरिश्तों का। हमारे जमीन पर हमारा काबा है,
हम जिस जमीन पर रहते हैं इस काबे का रोजाना तवाफ होता है, मुसलसल, कभी वो खाली नहीं होता है। इसी के सिद्धांत से 7वें आसमान पर फरिश्तों का काबा है। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि काबे के दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और जवाब देने के बाद फिर अगला सफर आगे का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की मुलाकात, अल्लाह का दीदार, रुयत बारी ताला हुआ और वापसी के अंदर तोहफे के अंदर नमाज मिली। तो ये गुज़िश्ता जुमेरात के दिन जो पहला रुकू आया था, इसमें तो सितारों की कसम, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में 2 मरतबा देखना, और उसके बाद मक्के के लोग और ताइफ के लोग और कुछ मदीने के लोग जिन माबूदों की परस्तिश करते थे, पूजा करते थे, इबादत करते थे, वो थे फरिश्ते और उनकी मूर्तियां बनाई हुई थी। वहां पर अल्लाह तबारक ताला ने उनके बारे के अंदर फरमाया, अफराअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने नहीं देखा लात और उज़्ज़ा, उज़्ज़ा मक्के वालों का था, ये मक्के वाले उज़्ज़ा की पूजा करते थे। इसलिए गज़वे बदर के अंदर गज़वे बदर के अंदर गज़वे उहद में अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, खालिद बिन वलीद ईमान लाए थे, उन्होंने आवाज लगाई, लाना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, यानी हम जिस बुत की परस्तिश पूजा करते हैं उसके वजह से हमें पता हुई है, तुम्हारे को उज़्ज़ा नहीं। तो मक्के वाले उज़्ज़ा की इबादत। और ये वादी नखला मालूम है कहां है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जो वापिस आ रहे थे ना, मशहूर वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दावत देने के लिए ताइफ तशरीफ ले गए, 3 सरदारों से मुलाकात हुई और वहां पर नौजवान शरीर बच्चों को उनके पीछे लगाया गया, जो तालियां पीटते, गालियां देते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारते और आपका जिस्म पूरा लहूलुहान हो गया। वापसी में जब फजर की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में पढ़ रहे थे और वो फजर की नमाज थी, फजर की नमाज के अंदर ही जब जिन्नातों की एक जमात वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने जब कुरान सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने ईमान को कबूल किया। ये वादी नखला याद है? तो वादी नखला के पास ये उज़्ज़ा का बुत था। और लात कहां पर है? यह है ताइफ के अंदर, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों सरदारों को दावत देने के लिए गए थे। और मक्के के सरदारों के वहां पर अंगूरों के बागात भी थे, जिसमें वलीद बिन मुग़ीरा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग। इनके ताइफ के अंदर बड़ी सरसब्ज़ शादात वादी है और बड़ी खूबसूरत, और पानी वहां पर ज्यादा है। तो लात ताइफ वालों का माबूद या बुत, और बुत किसके हैं? ये फरिश्तों के बनाए हुए, और तीनों मोन्नस है, ये औरतों के, इसलिए लड़कियां है करते थे, बेटियां हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, उनके इन्होंने बुत बनाए थे। तो लात कहां पर है? ताइफ में। और उज़्ज़ा नखला, ये मक्के के करीब है। और तीसरा है मनात। मनात ये था औस और खजरज, मदीने वालों का था। तीनों का इनकार किया गया यहाँ पर कि जिन फरिश्तों को तुम अल्लाह की बेटियां कह रहे हैं और उसकी तुमने मूर्तियां बनाई है और उसकी तुम पूजा कर रहे हैं, इनसे मन्नतें मुरादे मार रहे हैं, क्या तुमने देखा नहीं? अफराइतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस-सालिसतल उखरा अलकुमुज़ ज़कर व लहुल उन्सा, तुम अपने लिए बेटे पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज की है तुमने। तिल्का इज़न क़िस्मतुज़ ज़ीज़ा, ये तो बड़ी नाइंसाफी वाला काम कि अल्लाह को अलाट भी किए तो बेटियां, खुद के लिए बेटे। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मय्तumuहा, ये चंद नाम है जो तुमने अपने दिल से रखे हैं, तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने, और इसके बारे में तुम्हारे पास कोई दलील और सबूत नहीं है। आप तो बस एक गुमान की पैरवी कर रहे हैं और अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने आज की आयत के अंदर फरमाया, कम मिन मलकिन फिस समावात, कितने फरिश्ते ऐसे हैं जो आसमानों में हैं, ला तुगनी शफाअतुहुम शैया, अगर वो क़यामत के दिन किसी की सिफारिश करेंगे तो हम सिफारिश कबूल भी नहीं करेंगे। जिन फरिश्तों को तुमने माबूद बनाया है, जिनकी परस्तिश कर रहे हैं, जिनसे मन्नतें मुराद, इन फरिश्तों को पैदा किसने किया? हमने पैदा किया। कल क़यामत के दिन ये कहते थे कि अल्लाह ताला इनकी सुनता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कल क़यामत के दिन अगर जो आसमानों में कितने फरिश्ते हैं, अभी जैसे मैंने बताया ना, मेराज के अंदर जब गए तो 7वें आसमान के ऊपर जो बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है, रोजाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज जिन फरिश्तों ने उसका तवाफ किया क़यामत तक उनका नंबर नहीं आता है।
तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आसमानों में कितने ऐसे फरिश्ते हैं जिसको अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं, लेकिन ला तुगनी शफाअतुम, अगर ये किसी की सिफारिश करें, इल्ला मिन बादी अन याज़न अल्लाह, हाँ अल्लाह ताला अगर इजाजत दे और वो सिफारिश करे तो इनकी सिफारिश कबूल नहीं होगी। बगैर अल्लाह की इजाजत के अल्लाह के पास सिफारिश भी नहीं कर सकते किसी को। तुम उनसे मन्नतें मुरादे मान रहे हैं। लिमन शाह, और जिसको चाहे अल्लाह ताला, व यर्दा, और अल्लाह राजी भी हो उसके ऊपर। इजाजत भी अल्लाह ताला दे कि सिफारिश करने की, और सिफारिश करने के बाद अल्लाह जिसकी चाहेगा सिफारिश को कबूल करेगा, जिसकी नहीं चाहेगा उसकी सिफारिश भी कबूल नहीं करेगा। इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं, ईमान नहीं रखते हैं, ला युसम्मूनल मलाइकता तस्मियतुल उनसा, तो इन्होंने फरिश्तों के नाम रखे हैं मुअन्नस, औरतों के ऊपर नाम, लेडीज यानी कि मादा। नाम भी फरिश्तों के कौन से रखे? मर्दों वाले नहीं नाम रखे, औरतों वाले नाम। नाम कौन से? लात, उज्जा और मनात। वमा लहुम बिही मिन इल्म, इसका इनके पास कोई इल्म नहीं है। कोई भी बात अगर आप कर रहे हैं तो उसकी दलील क्या होगी? उसका इल्म होगा। इल्म के बगैर कोई दलील कबूल नहीं की जाएगी। यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये तो बस एक अटकल और एक गुमान के पीछे चल रहे हैं, उसकी इत्तिबा कर रहे हैं। इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैया, और बेशक गुमान कुछ भी काम नहीं आता हक के मुकाबले में। फ़ारिज़ अम्मन तवल्ला, तो आप ध्यान ना दें जिसने अपना मुंह मोड़ दिया है हमारे जिक्र से। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, और ये नहीं चाहता है सिर्फ दुनिया की जिंदगी। ज़ालिका मबलगहुम मिनल इल्म, इनकी पहुंच, इनके इल्म की पहुंच सिर्फ यहीं तक है। बस ख्यालात है, कुछ गुमान है, कुछ ख्यालात है, हकीकत में इनको कुछ दलील क्या है? इल्म आपके पास तो कोई किताब है? किताब भी नहीं। हमारे बाप दादाओं ने कहा था इसलिए हम कर रहे हैं, कोई दलील सबूत इनके पास नहीं है। और यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये मेरे पास जो इल्म आ रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से मेरे पास एक मजबूत इल्म है, और मेरे पास दलील है कि ये जो फरिश्तों की, जिनको तुमने मादा बनाया है, उनकी मूर्तियां बनाई हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता, अल्लाह की मखलूक है। और कल क़यामत के दिन अगर किसी की सिफारिश करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर अल्लाह ने इजाजत दिया तो कर सकते हैं, और अल्लाह जिसकी चाहेगा, जिसको चाहेगा इजाजत देगा, और वो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश कबूल करेंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये मखलूक है, ये पैदा की भी है। इन्ना रब्बका हुवा आलम बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तेरा रब जानता है कि जो कोई अपने राह से गुम हो गया, गलत रास्ते पर गुमराह हो गया, उसको जानता है। वह आलम बिमन इहतादा, और सीधे रास्ते पर, सही रास्ते पर कौन है उसको भी अल्लाह ताला जानता है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जमीनों में है। लियज़्ज़ियल्लाहु अल्लज़ीना असाउ बिमा अमिलू, ताकि अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को जिन्होंने बुरे काम किए उसको क़यामत के दिन उसका बदला दे। वयज़्ज़ियल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, और जिन्होंने अच्छे काम किए उसको अच्छा बदला दी। बुरे काम करने वाले को अल्लाह ताला उसका बदला देगा बुराई की शक्ल में, यानी जहन्नम, और जिन्होंने अच्छे काम किए उनको अच्छा बदला देगा जन्नत की शक्ल में। जो भी अमल करेगा हर अमल का बदला कल क़यामत दिन अल्लाह ताला उनको देगा। अल्लज़ीना यज्तनीबूना कबाइरल इस्म, कि जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते थे, वल फवाहिश, और बेहयाई के कामों से बचते। इल्लल लमम, हाँ छोटे मोटे जो गुनाह है उसको अल्लाह ताला माफ कर देगा। बड़े बड़े जितने कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह की लिस्ट बनी हुई, जैसे शराब है, जिना है, जुआ है, हरामकारी है, और बड़े बड़े गुनाह जिसमें गीबत है, चुगली है, ये बड़े बड़े गुनाह है, बगैर तौबा के माफ नहीं होते। तो बड़े बड़े गुनाहों से वो बचते थे, और वल फवाहिश, बेहयाई के कामों से भी बचते थे। इल्लल लमम, हाँ छोटे मोटे गुनाह जो है, जो इंसान से नादानी तौर पर पैर फिसल गया और गैर इख्तियार, इसलिए बहुत सारे गुनाह जो है ना माफ होते हैं नमाज के जरिए से, वजू के जरिए से। बहुत सारे वजू करते वक्त जो आजा से वो गुनाह हो झड़ जाते हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा को तो नजर भी आते थे ना कि कौन सा गुनाह वजू के अंदर गिर रहा है, झड़ रहा है। तो ऐसे वजू के जरिए, नमाज के जरिए बहुत सारे सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन बचना किससे है? बड़े बड़े गुनाहों से। बाज़ औक़ात इंसान छोटे छोटे नेकियों पर, छोटे छोटे गुनाहों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन बड़े बड़े गुनाह के बारे में उसको ख्याल भी नहीं आता। और ऐसे लेंगे कि उनके कपड़े, उनका लिबास, इतनी एहतियात करेंगे कि ये नाजायज, ये हराम, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बड़े बड़े गुनाह आ जाते हैं आराम से इसको कर देते हैं। जैसे सूद, बड़ा गुनाह है नहीं, ये तो कबीरा गुनाह है,
उसके बारे में उतनी एहतियात नहीं करेंगे, मामूली मुस्तहबात के अंदर और छोटी छोटी चीजों के अंदर बड़ी एहतियात करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाएगा वो क्या करते हैं, कबीरा गुनाहों से बचते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से, और बड़े बड़े गुनाहों के बाद वल फवाई बेहयाई के कामों से बचते हैं। इल्लल लमम, हाँ छोटे गुनाह अगर हो गए अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। इन्न रब्बका वासिउल मगफिरह, बेशक तेरा रब बड़ा माफ करने वाला है। वह हुवा आलमु बिकुम इज़ा अंशअकुम मिनल अर्द इज़ अंशअकुम मिनल अर्द, और वो जानता है कि अल्लाह तबारक ताला ने तुमको मिट्टी से या जमीन से पैदा किया। जैसे आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए, जितने भी दुनिया के अंदर इंसान है और जितनी भी मखलूकात है वो तमाम के तमाम मिट्टी से पैदा हुई। जानवर, चरिंदे, परिंदे सब मिट्टी से पैदा हुए। इसी तरह हमारी भी पैदाइश मिट्टी से है। तो अल्लाह फरमाए कि जिस अल्लाह तबारक ताला ने तुमको पैदा किया मिट्टी से, इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, कि तुम अपने माओ के पेटों में बच्चे थे, जनीन जिसको कहते हैं ना। अब ये बच्चा बना नहीं, अभी तो नुत्फा है, फिर मुस्गा है, फिर अलका, 3 स्टेज है ना। तो तुम उसके अंदर तो बच्चे थे, तो तुमको तो मिट्टी से पैदा किया। फला तुज़क्कू अनफसकुम, तो तुम अपने आप को ज्यादा खूबियों वाला मत समझो, या अपना ज्यादा बढ़ाई बयान मत करो। अल्लाह ताला फरमाए पैदाइश को देखो किस चीज से पैदा किया, मिट्टी से। और मिट्टी के बाद जो प्रोसीजर अल्लाह ताला फरमाए, जब माँ के पेट के अंदर था तो जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो वो कितना नापाक और गंदा होता है। और पैदाइश भी आगे अल्लाह ताला फरमा रहे जिस चीज से हमने तुमको पैदा किया तो वो नापाक मनी का गंदा खतरा था, उससे तुमको पैदा किया। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तो आप अपने आप को ज्यादा भारी मत समझो, आला ऊंचा मत समझो। पैदाइश की तरफ देखो, तुम पैदा किस चीज से हुए, जब तुम माओ के पेटों में थे। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तो अपने आप को ज्यादा खूबियों वाला मत समझो। हुवा आलमु मन इत्तक़ा, मुत्तकी तक़वे वाला नेक कौन है अल्लाह ताला को मालूम। ज्यादा नेक बनने की कोशिश नहीं करना है। बाज लोगों के अंदर आदत होती है कि वो अपने आप को इतना नेक बताते हैं, नेक पेश करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हें नेक कौन है मैं जानता हूं, तुमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कपड़ों से, लिबास से, उठने बैठने से, चलने फिरने से, अमाल के जरिए से लोगों को ऐसा बताएंगे बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार हूं। अल्लाह ताला फरमाए फला तुज़क्कू अनफुसकुम, ज्यादा नेक मत बनो तुम, हमको मालूम तुम क्या है, पैदा कैसे करे हमने तुमको मिट्टी से। तुम अपनी अगर असलियत की तरफ जाएंगे ना पीछे, तो तुमको मालूम होगा कि तुम पैदा कैसे हुए। बच्चा जब होता है ना, इसलिए दाया जब बच्चे को लेती है ना तो फरमाता है कि बड़े जब हो जाते हैं ना तो तुम तो मेरे हाथ के अंदर पैदा हुए थे, यानी मैं सब जानती हूं तुम क्या है। मैंने तुमको उस वक्त देखा है जब तुम कपड़े भी नहीं पहनते थे। सुने होंगे ना, तुम बोलते ना आज तो बहुत बड़ा बना ना, अपने आप को बहुत भारी समझ रहा है, तो मेरे हाथों में खेला हुआ है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपनी पैदाइश की तरफ देखो, तो वो मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी के बाद तुम अपने माओ के पेटों के अंदर छोटे बच्चे थे। तो अब अपने आप को ज्यादा नेक मत बनाओ, बताओ मत। बनना एक है, एक हकीकत में इंसान होता है, और कुछ को लोग बनते ऐसे, उनके कपड़े, उनकी टोपी, उनकी दस्ती, उनका लिबास, उनका चलना ऐसा महसूस है बड़ा अल्लाह वाला है। हकीकत में अल्लाह ताला फरमाए कौन मुत्तकी हम जानते हैं ना, तुम में से कौन है। और जो अल्लाह ताला के सामने मुत्तकी होगा उसको बताने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसा पेश करते हैं अपने आप को, उनके लिबास से, उठने बैठने से, चलने फिरने से, कपड़ों से। बैठेंगी भी तो थोड़ा अलग बैठेंगी, बात करने का थोड़ा अंदाज अलग होगा उनका। अल्लाह ताला फरमाए ये मत करो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, तुमने मुत्तकी कौन है हमको मालूम है। अफराइता लज़ी तवल्ला, क्या तुमने उसको नहीं देखा कि जिसने मुंह फेर दिया। ये है वलीद बिन मुगीरा, खालिद बिन वलीद के वालिद। वलीद बिन मुगीरा मालदार बहुत, पैसा भी बहुत था। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे, एक वक्त आया कि वलीद बिन मुगीरा ईमान लाने के लिए तैयार हो गया था ईमान लाने के लिए। मक्के के लोग गए भी उसके पास, और जाने के बाद उससे कहा कि मोहम्मद के बारे में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है। हम उसको शायर कहते हैं। तो कहने लगा शायर मुझे मालूम है, वो ख्याली बातें करते हैं। कुरान वो जो उनके ऊपर है वो शेर नहीं है, उसके अंदर एक वजन है, एक ताकत है, वो अल्लाह का कलाम है।
अच्छा बोले वो मजनून भी मुझे मालूम है, जिनके ऊपर जिन्नात आते हैं वो बहकी बातें करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहकी बातें नहीं करते हैं, वो तो आसमानों की, जमीनों की, कायनात की बड़ी कीमती बातें करते हैं। वो मजनून भी नहीं, जिन भी नहीं है उनके ऊपर। तो अच्छा काहीन है, बोले काहीनों से भी मेरा वास्ता है, वो तो पैसे के लिए कुछ भी झूठी बातें करते हैं, आने वाले हालात जो बताते। तो काहीन भी नहीं है, शायर भी नहीं है, मजनून भी नहीं है, काहीन भी नहीं है। तो बोले साहिर, तो बोले साहिर यानी जादूगर। तो बोले हाँ, जादूगर से भी मेरा वास्ता है, मेरे दोस्त है बहुत सारे, जादू का भी मैंने देखा, तो वो इनके पास जादू भी नहीं। तो मक्के वालों ने बोले क्या तू ईमान कबूल किया, क्या ईमान ला लिया? उसमें से एक शख्स ने वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि उनका कलाम बिल्कुल सच्चा है, वो सच्चे नबी है और मैं ईमान कबूल करने वाला हूं, मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। तो उसमें से एक शख्स ने कहा वलीद बिन मुगीरा से कि क्या तू अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुझे अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ना है। और इतना प्रेशर उन्होंने उसके ऊपर डाला, तो उसने कहा कि अगर मैंने ईमान ये कबूल नहीं किया तो कल जहन्नम में मुझे डलेगा, जलना पड़ेगा। तो उसमें से एक शख्स ने कहा कि अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुझे जहन्नम में डाले ना, उसके बदले में मैं चला जाऊंगा और मैं ये लिख कर देता हूं तुझे, लेकिन इसके बदले में तुझे कुछ पैसे देना पड़ेंगे मुझे, तेरे बदले में जहन्नम में मैं जलूंगा। उसके लिए वो तैयार होगा और इस्लाम से भी रुक गया। हक समझ में करीब चले गया था, इस्लाम के मानने के करीब चले गया था, लेकिन इसके बावजूद। और सूरह मुदस्सिर के अंदर भी अभी आने वाले हैं, सूरह मुदस्सिर के अंदर भी इसका वाक़या है कि सुम्मा अबसा सुम्मा बसारा सुम्मा नज़ारा सुम्मा बसारा, अजीब गरीब उसने किया। फिर त्योरी चढ़ाई, फिर आंखें ऊपर की, फिर पेशानी पर बल लाया, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हटा, और उसके बाद ये कहा इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, ये इंसान का एक कौल है, बातें हैं, बाकी इसके अंदर हकीकत में कुछ भी नहीं। इन ही इल्ला सिहरी यूसर। सूरह मुदस्सिर निकाल देंगे, सूरह मुदस्सिर के अंदर उसका पूरा नक्शा खींचेगा अल्लाह तबारक तआला ने। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं छोड़ दे मुझको और उसको जिसको मैंने बनाया अकेला, वलीद बिन मुगीरा अकेला पैदा किया। वजअलतु लहू मालम ममदूदा, और उसको हमने दुनिया के अंदर माल दिया, खूब माल फैला कर माल दिया उसको। वह बनीन वो शुहुदा, और उसके बेटे भी दिए, और उसमें मजलिस में बैठने वाली भी, उसकी मजलिस होती थी ना, उसके अंदर मजलिस में बैठने वाली भी। दुनियादारों की मजलिस से आमतौर पर देखो उसके अंदर लोग ज्यादा होते हैं, दीन की मजलिसों में कम होते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस लगती थी तो यहाँ पर कम है, जैसे भी हम यहाँ बैठे हैं। अब बाजार में अगर चले गए तो वहां बैठने के लिए जगह नहीं, और इसी तरह इलेक्शन के अंदर जो मजलिसें होती है तो हजारों की लाखों की तादाद के अंदर हो। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि मोहम्मद तुम्हारी मजलिस बहुत छोटी है, हमारी मजलिस है देखो, हमारे पास शराब है, शबाब है, कबाब है, नाच है, गाना है, हमारे पास इतने लोग मान ले हैं, तुम्हारे पास बहुत थोड़े लोग हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उसको माल भी दिया था खूब फैलाकर, और बेटे भी दिए थे, और मजलिस में बैठने वाले भी दिए। वमहत्तु लहू तमहीदा सुम्मा यतमाउ अन अजीदा, फिर वो लालच करता है कि उसको और मैं दूं। कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहु कान ली आयातिना अनीदा, वो हमारे आयात का यानी कुरान की आयात का, निशानियों का वो मुखालिफ था। सउरहिकुहु सऊदा, हम उसको एक चढ़ाएंगे चढ़ाई, यानी क़यामत के दिन हर एक को चढ़ाई चढ़ना है। चढ़ाई समझ में, एक तो आपको दुनिया में अगर चढ़ गए तो आखिरत के अंदर बच गए, और अगर दुनिया के अंदर नहीं चढ़े तो आखिरत में चढ़ना है, एक चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी। वहां से जाने के बाद आपको, जैसे पुलसिरात भी तो है ना, पुलसिरात पार करेंगे तो जन्नत है। तो इसी तरह जो दुनिया के अंदर उस चढ़ाई को चढ़ लिया, यानी जो अल्लाह ताला ने, और चढ़ाई चढ़ने के लिए इंसान को बहुत मेहनत और मशक्कत करना पड़ती है, बगैर उसके इंसान पहाड़ पर चढ़ सकते हैं आसानी से? उतरना आसान होता है, चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दुनिया के अंदर आपको एक चढ़ाई चढ़ना है तो उसके अंदर मेहनत है, मशक्कत है, तकलीफें हैं, ये दुनिया के अंदर दीन के रास्ते में आती है। इस चढ़ाई को आप चढ़ेंगे तो आखिरत के अंदर बच गए।
اور جس نے یہاں پر چڑھائی نہیں چڑھا تو اللہ فرمایا سأرهقه صعودا، ہم اس کو ایک چڑھائی چڑھائیں گے، دنیا میں نہیں چڑھا نا، مشقت تکلیف برداشت نہیں کیا، اب یہاں پر تکلیف برداشت کر. انه فکر وقدر، اب اس کا نقشہ کھینچے کہ جب وہ پورے مکے والے اس کے پاس ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور ایسا محسوس ہوا کہ اب یہ ایمان قبول کرنے والا ہے، تو اس نے جب دیکھا کہ لوگوں کی تیور دیکھا کہ یہ تو بالکل میرے مخالف ہو گئے، تو انسان کے پیر کی بیڑی جو بنتی ہے نا، مال بنتا، یہ اولاد بنتی، یہ عہدہ اور کرسی، حق تک انسان پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر صرف یہ چیزیں میرے ہاتھوں سے نہیں جانا، پھر وہ رک جاتا ہے. جیسے ہرقل کے بارے میں آپ نے سنے نا، رومن امپائر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں کا جو بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ کرسچن عیسائیت، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آئی بھی نہیں دنیا کے اندر، ابھی 300 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال پہلے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد رومن امپائر نے اپنا مذہب عیسائی بنا لیا تھا، یعنی مشرکانہ مذہب سے عیسائیت کو انہوں نے قبول کر لیے. تو عیسائیت کو بادشاہ نے قبول کر اعلان کہا کہ میں آج سے کرسچن عیسائی بن گیا ہوں، اور سارا ملک اس کے ساتھ میں عیسائیت کو قبول کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں ہوا تھا، یاد ہے نا، سن 6 ہجری، مدینہ جانے کے بعد 6 سال کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے قربانی کے جانوروں کے ساتھ گئے تھے، اور جانے کے بعد صلح حدیبیہ ہوا اور 10 سال کا مکے والوں سے معاہدہ ہوا جنگ بندی کا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کرے تھے، تو اس میں ایک خط ہرقل کو بھی لکھا تھا، رومن امپائر. اتفاق سے وہ رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا وہ بیت المقدس آیا تھا، ملک شام، اور ملک شام کے اندر ابو سفیان کا قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اور اب یہ سن 6 میں تو ایمان نہیں لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کر دیے، مصر کو خط لکھے، پرشین امپائر، رومن امپائر، مختلف ملکوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط گئے. تو ہرقل کے پاس جیسے یہ خط پہنچا، تو خط پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں پر مکے کا کوئی ہے قافلہ؟ تو بولے ہاں ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور اس وقت ابو سفیان گئے ہوئے تھے. ابو سفیان کو جب اس نے بلایا، زبان تو نہیں جاتا، بیچ میں ترجمان کہا کہ میں ان سے کچھ سوالات کروں گا. سب سے پہلا سوال کیا ہے، اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اور اس میں کیا تھا، خط میں کیا لکھا تھا، اسلم تسلیم، اسلام قبول کر سلامت رہے گا. اور یہ خط کی محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب طرف سے خط ہے، الہ ہرقل شاہ روم کے بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے. تو وہ خط پڑھنے کے بعد اس نے مکی کے جو قافلہ تھا ابو سفیان کو بلایا اور سوالات کیے، کبھی سچ انہوں نے جھوٹ بولا کہ بولے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس دن جھوٹ بولے، لیکن میں نے صرف اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ میرے ساتھ والے کہیں گے کہ ہمارا سردار جھوٹا ہے. جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا تھا. ابو سفیان فرماتے ہیں ابھی ایمان نہیں لائی، ابھی 2 سال کے بعد فتح مکہ میں ایمان لانے والے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا. تو بولے ان کے نسل میں کوئی بادشاہ گزرا؟ تو بولے نہیں گزرا. بہت سارے سوالات ہیں ان کی. اور اتفاق سے اس وقت حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں پر تھے. تو ابو سفیان نے جب دیکھا کہ میں نے جو سوالات کے جواب دیے، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تعلیمات ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے، ساری چیزیں جو سوالات کے جوابات تھے، انشاءاللہ بھی اپن اس کو نکال کے پورا پڑھیں گے کہ خط میں کیا کیا لکھا ہوا تھا. تو خیر حضرت ابو سفیان نے جب ایمان نہیں لیا، جب دیکھا کہ میرا تو کوئی اثر نہیں ہوا، اور اب وہ ایمان قبول کرنے والا تھا. وہ کیا چاہ رہا تھا کہ جیسے 300 سال پہلے ہرقل کے بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کیا اور پورا ملک عیسائی بن گیا، ایسے ہی میں نے اگر اسلام قبول کر لیا تو میرے ساتھ میں جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لینا. لیکن ان کے جو بطریق جس کو کہتے ہیں، اور جن کے وہ علماء اور رہبان تھے جو وہاں کے بڑے بڑے عہدے کے اوپر تھے، تو ان کی آنکھیں لال پیلی ہو رہی تھی کہ اب یہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد رسول اللہ کے مذہب کے اندر، دین کے اندر داخل ہونے
जैसे ही उसने अंदाजा लगाया कि ये लोग इसको नापसंद कर रहे, तो अब पैर की बीड़ी क्या बन गई? हुकूमत। वो हिरकल चाह रहा था कि जैसे 300 साल पहले बादशाह के हुक्म से पूरी रियाया मुसलमान हो गई थी, ईसाई बन गई थी, आज अगर मैंने इस्लाम कबूल, सब लोग अगर इस्लाम कबूल करते, मेरी बादशाहत भी रहती और मैं इस्लाम भी कबूल कर लेता। तो फिर उसने खामोश हो गया, करीब करीब आ गया था इस्लाम के। ऐसे ही यहां पर वलीद बिन मुगीरा बिल्कुल करीब करीब पहुंच गया था, बिल्कुल हक सामने, सच्चाई इसके सामने आ गया था और हक कबूल करने के लिए तैयार भी हो गया था। पैर की बेड़ी क्या बन गई? अब मेरी सरदारी, मेरे साथ जो लोग हैं, अब ये मेरे से टूट जाएंगे और मेरी जो मजलिस है, मेरे चाहने वाले हैं, इंसान कट जाता ना। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्के में रहे थे, सादिक और अमीन सब साथ में थे, जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा सब कट गए। इसी तरह आप भी जब तक लोगों से मिले जुले हुए रहेंगे और उनके बातों पर, उनके अमाल पर कुछ नहीं बोलेंगे, सब आपसे खुश रहेंगे। लेकिन जैसे आपने टोकना शुरू कर दिया, गलत को गलत बोलना शुरू करा, नाजायज को नाजायज कहना शुरू कर दिया, आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाए। होता ही दुनिया के अंदर। तो इसने ये सोचा वलीद बिन मुगीरा ने कि मेरा जो ओहदा है, मेरी जो कुर्सी है, मेरे जो मजलिसें हैं और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, अब ये सब कट जाने वाले हैं। वहां उनका मंजर कुरान ने खींचा कि जब वो शख्स ने कहा कि अगर तुझे जहन्नम में डाला गया तो तेरे बदले में मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में तुझे मुझे कुछ पैसे देना पड़ेंगे। तो वो तैयार होगा, ठीक मैं पैसे दूंगा, काहे के लिए? जहन्नम में जलने के लिए। तो वहां का नक्शा कुरान ने खींचा कि वलीद बिन मुगीरा ने, जब वो कौम वालों ने देखा कि कहीं इसने ईमान तो कबूल नहीं किया, तो उसने फौरन अपना पैतरा बदल दिया। कुरान ने उसको जिक्र किया, इन्नहु फक्करा व कद्दरा, उसने थोड़ा सोचा, थोड़ा अंदाजा लगाया। इसे नाटक करते हैं ना लोग। अभी इसका स्टाइल देखो, कुरान अल्लाह ने उसका नक्शा खींचे, इन्नहु फक्करा व कद्दरा, उसने थोड़ा सोचा और थोड़ा अंदाजा लगाया। फकुतिला कैफ कद्दर, और वो मार डाला जाए या कत्ल हो जाए, हलाक हो जाए, कैसा उसने अंदाजा लगाया। सुम्मा कुतिला कैफ कद्दर, फिर वो मार दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए कि कैसे उसने गलत अंदाजा ठहराया। सुम्मा नजरा, फिर उसने निगाह ऊपर की। मजलिस में बैठा हुआ था ना, सारी मजलिस, कि अभी ईमान कबूल करने वाला है, सामने वाले लालूच भी दे दिया। तो अब अपनी बात को बनाने के लिए क्या किया? ये पूरा नक्शा अल्लाह तबारक तआला उसके खींचे। फक्करा व कद्दरा, थोड़ा सोचा, फिर त्योरी चढ़ाई, फिर ऊपर देखा आसमान की तरफ, फिर खड़े हुआ, खड़े होने के बाद एक अंदाजा ठहराया। सुम्मा नजरा, फिर निगाह उठाया। सुम्मा अबसा, फिर त्योरी चढ़ाई। वबसरा, और सुम्मा अबसा वबस, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिसोरना जिसे कहते हैं ना, उस तरीके से उसने किया। सुम्मा अदबरा, फिर पीछे हटा। वस्तकबरा, और फिर जरा गुरूर तकब्बुर किया। फकाल इन्न हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर, और फिर ये बोला कि ये सिर्फ एक जादू है जो तुम्हारे पर असर कर रहा है। इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर, और ये कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि ये किसी बशर का, इंसान का कलाम है। ये कहे फौरन अपने आप को उसने पूरी स्टाइल अल्लाह ताला ने कि खड़ा किस तरीके से हुआ, थोड़ा सोचा, सोचने के बाद त्योरी चढ़ाई, फिर आसमान की तरफ देखा, उसके बाद फिर अजीब गरीब पूरा मंजर अल्लाह तबारक तआला उसका खींचा। और आखिर में क्या कहा कि ये जो है इन हादा इल्ला कौलुल बशर, कुरान अल्लाह का कलाम नौज़बिल्लाह नहीं है, ये बशर का कलाम है। और उसके बाद ये जादू है। यहां पर अल्लाह तबारक तआला उसको बता रहे हैं, अफराइतल्लज़ी तवल्ला, क्या तुमने उसको नहीं देखा कि जिसने मुंह फेर दिया, इस्लाम की तरफ आ गया था फिर पलट गया। वो आता कलीलन व अकदा, थोड़ा दिया फिर रोक दिया। यानी वो जिस बंदे ने वादा किया था ना कि तू ईमान कबूल मत कर, अगर तूने ईमान कबूल किया, अगर तूने ईमान कबूल नहीं किया, यानी मोहम्मद पर ईमान नहीं लाया, और अगर अल्लाह ताला ने तुझे जहन्नम में डाला, तो तेरे बदले में जहन्नम में मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में तुझे मुझे कुछ पैसे देना पड़ेंगे। तो मालदार तो बहुत था वलीद बिन मुगीरा, उसने तैयार हो, ठीक मैं माल देने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आता, कुछ दिन तक दिया वलीद बिन मुगीरा पैसे ने, वाकदा फिर बंद कर दिया, देना बंद कर दिया पैसे। इंदहु इल्मुल गैबी फहुवा यरा, क्या इसके पास गैब का इल्म है जिसको ये देख रहा है कि कल जहन्नम से ये पैसे देकर बच जाएगा?
अम लम युनब्बा बिमा फी सुहुफी मूसा व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, क्या इनको खबर नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में क्या था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में क्या था। और इब्राहिम कौन, जो बड़े वफादार थे, वफ़ा, जिन्होंने अपने आप को पूरा पूरा दे दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सहीफे मालूम है, सहीफे किताबें 4 है हमारे पास, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान पाक। और सहीफे मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम, सहीफे नहीं कि पॉम्फलेट छोटे छोटे होते थे। तो जितने भी मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ में और एक बेटे थे, उनका नाम था, इनके बड़े भाई यसू। उनके बारे में आता है कि यसू की औलाद और उनका कुंबार कबीला दुनिया में गुम हो गया है। बाज रिवायत आर्या समाज जो है ना, आर्या जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, ये इब्राहिमी नस्ल के ही है। इसलिए इनके खुदा का नाम क्या है, ये अपना जो खुदा जो कहते हैं ना जिनको, ब्रह्मा, ब्रह्मा है ना खुदा इनका। और ब्रह्मा क्या है, फारसी लफ्ज है, इब्राहिम को कहते हैं। जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाया, यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा बनाया, ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने इब्राहिम को खुदा बना दिया। इसलिए इनका सबसे बड़ा जो खुदा है वो है ब्रह्मा, और उसके मानने वाले ब्राह्मण, उनके मानने वाले ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के हैं। और यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हमने सहीफे दिए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को भी सहीफे, किताब भी दी थी तौरात, और उसके साथ सहीफे भी मिले थे। तो हो सकता ये उलमाए किराम का ऐसा ख्याल है, हो सकता, और मेरा भी एक अंदाजा, एक नजरिया, ये मेरा अंदाजा, ये गलत भी हो सकता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो सहीफे मिले थे और आर्यन जो यूरोप से और यूरेशिया से जो यहां पर आए थे, उनके पास सहीफे थे, और उन सहीफों के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में से उपनिषद जो किताबें हैं ना, उपनिषद, ये हो सकता वो वही किताबें हैं जिनके अंदर तौहीद की तालीम है। और उसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान में फरमाए कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी सहीफे दिए थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी सहीफे दिए। और वो इब्राहिम कौन है, वफ़ा, जिसने अपने आप को पूरा पूरा हमको दे दिया, जरा भी फिर कमी नहीं की, जो मांगा अल्लाह ताला ने दिया। बेटा मांगे बेटा दे दिया, जुबा कर दो हमारे नाम पे, तैयार हो गए जुबा करने के लिए। बस्ती अपना इराक छोड़ने के लिए तैयार है, आग में कूद जाओ, कूदने के लिए तैयार। इसके माने वफ़ा, अपने आप को पूरा पूरा देना। तो ये जो फरमा रहे हैं कि ये वलीद बिन मुगीरा, और इन्होंने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, और इन्होंने फरिश्तों को बेटियां बनाई हैं, और क़यामत के दिन अपने आप को बचाने के लिए माल देने के लिए तैयार है, और ईमान कबूल नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनको मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में खबरें जो दी गई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में जो खबरें दी, इसका इनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला के पास आमाल लगने वाले, ईमान लगने वाला है। आपके ओहदे, कुर्सी, जान, पहचान, ताकत अल्लाह ताला के पास कोई अहमियत नहीं रखती। यहां तक कि जिनकी पूजा तुम करते हैं ना, फरिश्तों की, जिनको तुमने बेटियां बनाई हुई, इनकी भी सिफारिश अल्लाह के पास चलने वाली नहीं। अल्लाह तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, कि मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में क्या था कि क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक को अपना बोझ अपना खुद को उठाना पड़ेगा। जिसने जो अच्छे अमल किया उसका अमल उसके साथ, जिसने बुरे अमल किया उसके बुरा अमल का बोझ उसी के ऊपर होगा। अल्लाह तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, कल क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। व अलैसा लिल इंसानि मा सआ, और इंसान को वही मिलता है जो जिसकी वो कोशिश करता है। जो मेहनत, जो कोशिश करेगा, अगर नेक अमाल की कोशिश करा, अच्छे अमाल की कोशिश किया, तो अल्लाह तबारक ताला उसी के हिसाब से क़यामत के दिन उसको बदला देंगे। और अगर पूरी जिंदगी के अंदर बुरे अमाल, बुराइयां, गुनाह की कोशिश की, तो क़यामत दिन उसको बदला मिलेगा। नहीं है इंसान के लिए सिवाय उसके जो जिसकी वो कोशिश करता है। इसलिए हमेशा नेक अमाल करने की कोशिश करना चाहिए और गुनाहों से बचने की कोशिश करना है। हिदायत तो अल्लाह देने वाला है, तो इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अब इंसान, बहुत सारे लोग, आपने नमाज पढ़ने के लिए आप दुआ करो अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे,
भाई कोशिश करना आपका काम है, आप कोशिश करेंगे तब अल्लाह तब हिदायत देगा। हमारे दुआ करने से तुमको नमाज की हिदायत कैसी मिलेगी? कोशिश तो हमको खुद करना पड़ेगी ना। सुबह में कारोबार के लिए, धंधे के लिए, दुकान खोलने के लिए जाने के वास्ते दुआ करो, कहते हैं हम कभी से दुआ करो, कल मैंने सुबह में दुकान खोलना, कल मुझे काम को जाने का है ना, मेरे लिए दुआ करो। तो जैसे इंसान कोशिश करता है अल्लाह तबारक ताला उस कोशिश के ऊपर अल्लाह तबारक ताला उसको देता भी है और वही मिलता भी है। वह अन्न सायहु सौफ युरा, और ये जो भी कोशिश करेगा, साई करेगा, मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, कल क़यामत के दिन उसको अपने सामने देख लेगा, जो भी कोशिश करेगा। सुम्मा यज्जाहु जज़ाअल औफा, फिर अल्लाह ताला उसको बदला देगा, पूरा पूरा बदला, जरा भी कमी नहीं करेंगे उसके अंदर बदला देने के अंदर। नेकियों का बदला अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा कर देंगे, लेकिन गुनाह का बदला जितना गुनाह किया उतना ही मिलेगा। एक आदमी ने एक गुनाह किया, एक का ही उसको बदला मिलेगा। लेकिन अगर एक नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ गई, अल्लाह ताला को 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बनाकर भी दे सकता है। तो नेकियों को बढ़ाकर देगा और गुनाह जितना किया था उतनी ही सजा देगा। अल्लाह जालिम नहीं है कि किसी ने कोई गुनाह नहीं किया और उसकी अल्लाह उसको सजा दे दे, जितना गुनाह किया उतनी ही सजा मिलेगी। सुम्मा यज्जाहु जज़ाअल औफा, फिर उसको बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला। व अन्न इला रब्बिकल मुंतहा, आखिर में इंतहा तुम सबकी जो है, जहां पर खत्म होने वाला है वो तुम्हारी रब की जात है। दुनिया में इंसान भागेगा, दौड़ेगा, बचेगा, कोशिश करेगा, एक वक्त आएगा मौत के बाद जब क़यामत की दोबारा जिंदा है, आप भाग नहीं सकते। अब इंतहा सिर्फ अल्लाह ताला, फरिश्ते तमाम इंसानों को जैसे बकरियां हाकी जाती है, तमाम लोगों को हाक कर मैदानी महशर की तरफ लेकर जाएंगे। इंतहा कहां पर है? अल्लाह ही की तरफ, कोई बच नहीं सकेगा। वह अन्ना हुआ अज़हका व अबका, और वही अल्लाह ताला है जो हंसाता भी है, रुलाता भी है, खुशियां भी वही देता है, गम भी वही देता है। वह अन्ना हुआ अमाता वाहिया, वही अल्लाह ताला है जो मौत भी देता है, जिंदगी भी देता है। जिंदगी भी अल्लाह के हाथ में, मौत भी अल्लाह ताला के हाथ में। वह अन्नहु खलक़ ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, वही अल्लाह ताला है जिसने जोड़े बनाए हैं, मर्द के भी और औरत की, मुज़क्कर के भी, मुअन्नस के भी, नर के भी और मादा के भी, सब अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं। मिन नुत्फ़तिन इज़ा तमन्ना, वो एक बूंद, एक पानी का खतरा था जिससे ये जोड़े बने हैं। इज़ा तमन्ना, जब वो टपकाया जाता है, मादर रहम के अंदर जब वो एक खतरा टपकता है, अल्लाह ताला उससे जोड़े बनाता है, किसी को मर्द बनाता है, किसी को औरत बना देता है। हंसाता भी वही है, रुलाता भी वही है, मारता भी वही है, जिलाता भी वही है, और इंसानों के जोड़े भी वही बनाता है। और किससे बनाता है? मिन नुत्फा, नुत्फे से, उस गंदे पानी से जिसको वो डालता है। वह अन्न अलैहि नशअतल उखरा, जैसे अल्लाह ताला ने ये पैदा किया इसी तरह इसको दोबारा अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पैदा करेगा। मौत आई, मौत के बाद खत्म नहीं हुए, जमीन में जाकर मट्टी में जाकर मट्टी नहीं हुए, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमको दूसरी मर्तबा हम फिर तुमको पैदा करेंगे। वह अन्ना हुआ अगना व अकना, वही अल्लाह तबारक ताला है जो गनी भी करता है और फकीर भी करता है। मालदार भी अल्लाह ही बना देता है और गरीबी भी अल्लाह ही ताला देता है। दौलत के अंबार भी अल्लाह ही देता है, और किसी का अल्लाह सब कुछ लेता है, फक्र फाका देता है तो भी अल्लाह ही देता है। तो वही अल्लाह ताला है जो गनी भी करता है और फक्र भी देता है, या फकीर या गरीब बनाता है। वह अन्ना हुआ रब्बुश शिअरा, और वही शिअरा का रब है। अब ये जरा अहम है, फरिश्तों का जिक्र चल रहा था। फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, ये मक्के वाले कहते थे, और उनकी इन्होंने मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा शुरू की थी। इसी तरह ये सितारों की भी पूजा करते। जो सूरह नज्म शुरू है, नज्म में क्या है? तारा। वन नज्मी इज़ा हवा, कसम है तारे की जब वो गिर जाए, या फिर सुबह सुबह होती है तो जब सूरज निकलता तो सितारे नजर नहीं आते, तो गायब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, नजर नहीं आते। तो इसी तरह आसमान के ऊपर एक शेरा सितारा है। अभी आप यहां से उठने के बाद देखो, शेरा सबसे ज्यादा करीब, 8 दिन का सफर है हमारे जमीन से। शेरा सितारा जो है ना, अभी तक उसको एक समझते थे, लेकिन आज से कई 100 साल पहले अफ्रीका के अंदर के रहने वाले कहते हैं कि शेरा एक सितारा नहीं है, 2 है बोलते थे। और उनके पास तो कोई इल्म नहीं था उस वक्त। आज जब टेलीस्कोप इजाद हुई तो टेलीस्कोप के जरिए से देखा गया कि शेरा सितारे के बाजू में और 2 सितारे हैं, उसकी ये पूजा करते थे, इबादत करते थे। और दुनिया के अंदर जो आफतें, बलाएं और परेशानियां, मुसीबतें जो आती है, समझते थे ये उसकी तरफ से है, हम उसकी बंदगी करेंगे तो हमको परेशानियां, मुसीबतें नहीं आएंगी, और उससे ये दुआएं मांगते थे।
تو اللہ تعالیٰ فرمایا انہو ہوا رب الشعرا کہ اللہ تبارک تعالیٰ شعرا کا رب ہے. ابھی اب نکلنے کے بعد آسمان میں دیکھو سب سے زیادہ قریب اور زیادہ چمکدار جو ہے نا وہ شعرا ستارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے عاد اولا کو، قوم عاد جو تھی نا پہلی، عاد اولا یعنی پہلی عاد، اور عاد ثانی قوم سمود کو کہتے ہیں، کہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجے تھے، اور ان کو ہواؤں کے ذریعے سے ہوا کی سپیڈ بنا دیے 7 دن 8 7 لیالین 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر حسومن مسلسل چلتی رہی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کو، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تیز آندھی اور ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک کیا. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے عاد اولا کو بھی ہلاک کیا. وثمود، اس کے بعد قوم سمود آئی تھی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان کے کہنے پر جو معجزہ اس قوم والے نے مانگا تھا کہ اس پتھر کی چٹان سے اونٹنی، گابن اونٹنی نکال کر بتاؤ، اللہ نے نکالی اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. پھر اللہ کا عذاب آیا چیخ کے ذریعے سے، ایک چیخ آئی اور پوری قوم سمود ختم. تو وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے عاد کو بھی ہلاک کیا، سمود کو بھی ہلاک کیا. فما ابقا، کوئی اس میں سے اب باقی نہیں رہا. وقوم نوح، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، 950 سال اپنی امت کو دعوت دیے، لیکن امت نے آپ کی بات کو نہیں مانا. 40 یا 42 یا 80 یا 82 لوگ کشتی کے اندر بیٹھے، اور باقی جتنی دنیا کے اندر سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. تو قوم عاد کو بھی ہلاک کیا، قوم سمود کو بھی ہلاک کیا، قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا من قبل، اس سے پہلے. انہم کانوا ہم اظلم واتقا، کہ یہ بڑے ظالم تھے اور سرکش تھے. والمؤتفقۃ اہوا، اور اسی طرح ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو الٹ دی گئی ہیں. وہ کون سی بستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، جو اپنی خواہشات عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے. قوم لوط، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ الٹی ہوئی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا. فغشاها ما غشا، ان کو ڈھانپا تھا جس نے کچھ ڈھانپا تھا. یعنی فرشتہ جب آیا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ نوجوان بچوں کی شکل میں تھے، تو وہ ان کے بھی پیچھے لگ گئے اور کہا کہ لوط یہ بچوں کو ہم کو دے دو. تو سب سے پہلے فرشتے نے جب ان کا پر مارا تو اندھے کر دیا، یہ پہلا عذاب. دوسرا عذاب پتھروں کی بارش. تو یہاں فرمایا فغشاها ما غشا، بس ڈھانپا ان کو جو کچھ ڈھانپا، پتھروں سے ڈھک گئے تھے اتنے. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی اور ہر ایک پتھر پر نام لکھا ہوا تھا. تو پہلا اندھا کیا، دوسرے پتھروں کی بارش کی، اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ ایک پر کے نوٹ پر فرشتے نے اٹھایا اور پوری بستی کو پلٹ دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تَتَمَارَىٰ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کریں گے، جھٹلاؤں گے. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ تمہیں خبردار کیا جاتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے تمہیں خبردار کیا گیا تھا. کس بات سے خبردار؟ اگر تم بھی نافرمانی کریں گے، پچھلے قوموں کا انجام معلوم ہے، اب تمہارا بھی ہو سکتا ہے. ہم کو کیوں سنایا جا رہا ہے کہ پچھلے قوموں نے یہ گناہ کیے، یہ عمل کیے، نبی کی باتوں کے سمجھانے کے بعد ان کے سمجھ میں نہیں آئی، پھر عذاب آیا. عذاب آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تو عذاب کو دیکھنے کے بعد، موت کو دیکھنے کے بعد توبہ بھی قبول نہیں کرتا. آج تمہارے پاس وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہی نہیں، آپ کی بات مانتے نہیں ہیں، کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا، کسی کی پرواہ نہیں کریں. لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں کرنا. حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں، اور حق بات کبھی بھی اچھی لگتی بھی نہیں لوگوں کو، اس کی مخالف کرتے ہیں. 40 سال تک صادق امین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے تو لوگوں نے انکار کر دی، دشمن بن گئے آپ کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عازفۃ العازفہ، قیامت قریب آ چکی، آ پہنچی، ایک پہنچنے والی. کب فرما رہی ہے؟ 1450 سال پہلے، کہ جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پر جو ختم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے. میں آخری نبی ہوں، یہ آخری امت ہے، یہ آخری کتاب ہے. اب اس کے بعد صرف قیامت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، جیسے 2 انگلیوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی فاصلہ، کوئی وقت نہیں ہے. میرا آنا ہی قیامت کی علامت. اب میں آگا، میرے پاس صرف قیامت آئیں گی.
अजीफतिल आजिफा, आने वाली आ गई या पहुंचने वाली पहुंच गई, यानी कि क़यामत। लई सलाह मिन दूनिही काशिफा, उसको कोई हटाने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, वो आकर रहेगी क़यामत। अफा मिन हादल हदीस ताजबून, क्या तुम इस बातों को ताज्जुब करते हो? क़यामत पर मरना, मरने के बाद दोबारा ताज्जुब करते थे मक्के वाले, कहते थे कि मरेंगे, मरने के बाद हम मट्टी में गए, मट्टी हो गए और फिर हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। अब आबाउनल अव्वलून, क्या हमारे बाप दादा को भी अल्लाह ताला जिंदा करेगा? तो बोलते हैं हाँ, सबको जिंदा करेगा। hayhat लिमा तुमात, नहीं, नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। मट्टी में मट्टी बन गए, दोबारा कैसे जिंदा होंगे? अल्लाह ताला फरमाए, क्या इन बातों पर तुम ताज्जुब करते हो? वतज़हकून वला तबकून, हंसते हो, रोते नहीं हो। वांतुम सामिदून, और इसकी तुम मजाक उड़ाते हो, खिलखिलाते हो, इसको खेल कूद के अंदर लेते हो ये बातों को। फस्जुदू लिल्लाहि वाबुदू, अल्लाह ही के लिए सजदा करो और उसी ही की इबादत करो। जैसे ही ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म मक्के के अंदर सुनाई तो सारे लोग गौर से सुन रहे थे। जैसे ये आयत पर पहुंचे, फस्जुदू लिल्लाहि वाबुदू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और आपके साथ में जितने भी मुशरिकीन और कुफ्फार थे और ईमान वाले सब सजदे के अंदर गिर गए। इसलिए उलमा फरमाते हैं जब भी ये आयत पढ़ी जाएंगी तो सब उसी वक्त सजदा करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम भी अभी सजदा कर लेंगे, अभी सजदा कर लेंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर ये जब तिलावत कर रहे थे सूरह नज्म, और जब पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पढ़े फस्जुदू लिल्लाह, सजदा करो अल्लाह ताला के लिए, वाबुदू, और उसी की बंदगी करो, तो तमाम के तमाम मुशरिक या काफिर सारे सजदे में गिर गए, सिवाय एक शख्स के जिसने कुछ मट्टी उठाया और अपने पेशानी पर रखा, सजदा नहीं किया उसने। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह नज्म भी खत्म हुई। अगली जो सूरत है वो सूरह कमर है। जो कुछ कहा गया सुना गया उन तमाम बातों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सजदा कर लो फौरन ताकि एक सुन्नत हमारी जिंदा हो जाए।